ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا اور اس کے ساتھ ابلیس کو حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ سبھی نے کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ کی ذات ناراض ہوئی، ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا، ملعون اور مردود قرار دے دیا۔ ابلیس نے قیامت تک زندگی کی مہلت مانگ لی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ تو ابلیس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دیا، گمراہ کیا، میں سیدھے راستوں پر بیٹھ کے اس کو گمراہ کروں، میں اس کی طاق میں بیٹھوں گا سیدھے راستوں پر۔ تو شیطان یہ انسان کا پہلے دن سے دشمن بن گیا حسد کی بنا پر۔ اب ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنت میں ٹھہریں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت، اسکن کا معنی ٹھہر تو، انت تو، ٹھہرو تم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد ان کی رہائش کا انتظام کر رہے ہیں۔ رہائش کہاں پر دی؟ اللہ نے جنت کے اندر رہائش عطا فرما دی۔ جنت میں بھی سب سے جو اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الماوا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رہائش عطا فرما دی۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تیری بیوی بھی جنت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرا دیا، اور پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، زوجہ محترمہ۔ اللہ نے فرما دیا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم، اسکن انت وزوجک، ٹھہرو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، الجنت، جنت میں۔ یہ رہائش کا انتظام ہو گیا، اب کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ فَكُلَا، کھاؤ تم دونوں، من حیث شئتما، حیث کا معنی جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو،
जहाँ से तुम दोनों चाहो पूरी जन्नत में चलने की, फिरने की, खाने की इजाज़त। फ़कुला मिन हैसु शिअ्तुमा, खाओ तुम दोनों जहाँ से तुम चाहो। लेकिन एक शर्त अल्लाह ताला ने लगा दी जन्नत में, एक पाबंदी लगा दी। फरमाया वाला तक़रबा हाज़िहि शजरता, ना तुम करीब जाना इस दरख्त के। जन्नत में एक दरख्त था, अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, पूरी जन्नत में जहाँ मर्जी घूमो फिरो, जो चाहो खाओ, लेकिन ये एक दरख्त है, इसके करीब नहीं आना। ये दरख्त किस चीज़ का था? बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इंजीर का था, बाद फरमाते हैं कि ये पौधा था गंदम का, बाद फरमाते हैं कि ये बेल थी अंगूर की। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। जो भी दरख्त था, अल्लाह ने उस दरख्त के करीब आने से मना फरमाया कि इसका फल तुम्हें खाने की इजाज़त नहीं है। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना हो जाओगे गुनाहगारों में से। अगर तुम इस दरख्त के करीब आ गए और इसका फल चख लिया तो गुनाहगारों में से हो जाओगे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे हैं, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम भी जन्नत में। शैतान को अल्लाह ताला ने मरदूद और मलऊन करार दे दिया। वो उसके अंदर हसद की आग भड़क रही है कि मैं इनसे बदला कैसे लूँ कि जिसकी वजह से मुझे मरदूद और मलऊन करार दे दिया गया। अब वो दुश्मनी के ऊपर हर वक्त सोचो विचार में कि मैं इनको जन्नत से निकलवाऊंगा। फवस्वसा, फिर वसवसा डाला, लहुमा, उन दोनों को, अश-शैतानु, शैतान ने, इन दोनों के दिलों में शैतान ने वसवसा डाला। इन दोनों को शैतान ने बहकाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को। बहकाने का मकसद क्या था? वसवसा डालने का मकसद क्या था? कि जो जन्नत की नेमतें हैं ये इनसे छीन ली जाएं। जन्नत में जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को ठहराया तो जन्नत में नौरानी लिबास अता फरमाया। ये जो धागे का बना और कपड़े का ये लिबास नहीं था, अल्लाह ने वहाँ नूर का लिबास इन दोनों हजरात को अता फरमा दिया। शैतान ने फवस्वसा लहुमुश-शैतानु, फिर बहकाया इन दोनों को शैतान ने, लियुब्दिया, ताकि खोल दे, लहुमा, उन दोनों के, मा वूरिया, वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं, अनहुमा, इन दोनों से, मिन सौआतिहिमा, इनकी शर्मगाहों से। इनके जो मस्तूरा चीज़ें हैं, इंसान के आज़ा जो छुपे हुए हैं, दूसरों से छुपाता है शर्म की वजह से, उनको जाहिर कर दे, ये शैतान का मकसद था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में एक नेमत तो ये दी कि इनको मकान दिया, रहائش दे दी। दूसरी नेमत ये दी कि इनको जन्नत का खाना दे दिया, और तीसरी नेमत ये दी कि इनको जन्नत का नूरानी लिबास अता फरमा दिया। तो शैतान ने सबसे पहला टारगेट इसका लिबास किया कि इनका जो जन्नती लिबास है ये उतार दूं। अब वो कैसे उतरेगा? वो अल्लाह की नाफरमानी से उतरेगा कि अल्लाह ने जिस चीज़ से इनको मना किया है वो चीज़ इनको करवा दी जाए तो ये लिबास उतर जाएगा। उसके लिए शैतान ने मुख्तलिफ वसवसे उनके दिलों में डालने शुरू किए कि इस दरख्त के करीब चले जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, भी अल्लाह ताला ने मना किया है। कहने लगा कि वो जब मना किया था वो बड़ा पुराना ज़माना था, तकरीबन
100 साल, दूसरी रवायत में 120 साल तक हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे। वो बड़ा पुराना ज़माना था, उस वक़्त इब्तिदा में मना किया था, अब कोई मना नहीं। एक दलील ये दी। दूसरी दलील उसने ये दी कि देखो अल्लाह ताला ने ये जो हुक्म दिया था ये इब्तिदा में था, अब तुम जन्नत के अंदर रहते रहते जन्नत में रच बस गए हो, अब हुक्म ख़त्म हो गया। और दूसरा आपको मैं एक खैरखाही वाली बात ये बताऊं कि अगर तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहना चाहते हो तो फिर तुम इस दरख्त का फल खाओ, अगर तुम फरिश्ते बनना चाहते हो तो फिर इसका फल खा लो, इस दरख्त का। कहा नहीं, हमने नहीं खाना। अब वो इनकार कर रहे हैं, ये अपने वस्व से डाली जा रहा है, बेकार है उनको। आखिरकार शैतान ने जो आखिरी वार चलाया वो ये था कि इन दोनों के सामने अल्लाह ताला की कस्में उठा दी कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं। जैसे ही इन दोनों हजरात के सामने शैतान ने कस्में उठा दी, अब उनको यकीन आना शुरू हो गया कि शायद ये सही कह रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भूल गया कि हमें मना किया गया इस दरख्त का फल खाने से। अल्लाह ताला का निज़ाम था। तो शैतान ने अपनी मेहनत की, उधर अल्लाह ताला ने भुला दिया, और इधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में बात ये आई कि देखो ये अल्लाह ताला की कस्में भी उठा रहा है, तो लिहाजा ये ठीक कह रहा है। तो उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। खाया क्या, अभी उस फल को लेकर मुंह के अंदर रख के चखा है कि अल्लाह की नाराज़गी ज़ाहिर हो गई। नाराज़गी ज़ाहिर होने की सबसे पहली निशानी ये हुई कि जो जन्नत का नूरानी लिबास था अल्लाह ने वो छीन लिया, वो ख़त्म हो गया। अब दोनों एक दूसरे के सामने ज़ाहिर हो गए, बड़े परेशान कि ये क्या बना। अब जन्नत के दरख्तों के पत्ते लेकर अपने जिस्म को ढांपा। दोनों हजरात ने जन्नत के दरख्तों के पत्ते लेकर अपने जिस्मों को ढांपा। फवस्वसा लहुमुश्शैतानु, फिर बहकाया उन दोनों को शैतान ने, लियुब्दिया लहुमा, ताकि जाहिर कर दे इन दोनों के सामने, मा वो रिया जो छुपी हुई है, अनहुमा इन दोनों से, मिन सौआतिहिमा इनकी शर्मगाहों से। वक़ाला, और कहने लगा शैतान, मा नहाकुमा, नहीं रोका गया तुमको, नहीं रोका तुम दोनों को, रब्बुकुमा, तुम्हारे रब ने, अन हाज़िहि शजरति, इस दरख्त से, इल्ला अन तकूना मलकैनी, मगर ये कि तुम फरिश्ते हो जाओगे, औ तकूना मिनल खालिदीन, या तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। ये इसलिए तुम्हें इब्तिदा में रोका गया था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इज्तिहाद किया, इज्तिहादी गलती हो गई, तो आपने दरख्त का फल चख लिया। वक़ासमहुमा, और कस्में उठाई उन दोनों के सामने, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि बेशक मैं तुम दोनों का खैर खा हूँ। ये इब्लीस का काम है, शैतान का, मैं तुम दोनों का खैर खा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। फदल्लाहुमा बिगुरूर, फदल्लाहुमा, फिर माइल कर दिया उन दोनों को, बिगुरूर, अपने धोखे के ज़रिए से, अपने फ़रेब के ज़रिए से। वो तैयार हो गए। फलम्मा, फिर जब
ذاق الشجرता, दरख्त को चखा, बदत ज़ाहिर हो गया, लहुमा उन दोनों के सामने, सौआतहुमा उन दोनों की शर्मगाहें, वो नूरानी लिबास उतर गया, शर्मगाहें ज़ाहिर हो गई, व तफ़िक़ा और लगे यक्सिफ़ानी के ढांपते थे, जोड़ते थे, अलैहिमा अपने ऊपर, मिन वरक़िल जन्नती जन्नत के पत्ते, दरख्तों के पत्ते अपने ऊपर लगाकर अपने जिस्म को ढांप रहे थे। अब अल्लाह ताला ने बुलाया, वनादाहुमा और पुकारा उन दोनों को, रब्बुहुमा उनके रब ने, अलम अनहकुमा अन तिलकुम शजरती, क्या मैंने रोका नहीं था तुम दोनों को इस दरख्त से, व अकुल लकुमा और मैंने कहा नहीं था तुम्हें, इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अर्ज किया, पाला अर्ज किया, रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब हमने जुल्म कर लिया, अनफुसना अपनी जानों पर, व इल्लम तग़फिर लना अगर आपने मुआफ़ ना किया, व तरहमना और आपने हमारे ऊपर रहम ना किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन हम तो नुकसान उठाने वाले में हो जाएंगे। तो फ़ौरन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को तंबीह हो गई कि ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इस दरख्त का फल छोड़ दिया, खा लिया। अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, तो हमने खा लिया, लिहाजा अब हमें अल्लाह ताला की तरफ से नाराज़गी का सामना है। तो हाथ जोड़ दिए, दुआ मांगी अल्लाह ताला से, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये वो दुआ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाई थी और बहुत ही उम्दा और आला दुआ है। आज भी जिस बंदे से बंदी से गलती सरजद हो जाए और वो नाराज़गी में आ जाए, अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाए, तो उसको चाहिए कि वो इस दुआ का एहतमाम करे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये दुआ मांग दी। अब अल्लाह ने फरमाया, क़ाला फरमाया अल्लाह ताला ने, इहबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन, इहबितू उतर जाओ, जन्नत से उतर जाओ, बअज़ुकुम लिबअज़िन, बअज़ुकुम लिबअज़िन तुम एक दूसरे के, अदुव्वुन दुश्मन हो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, उतर जाओ जन्नत से, निकल जाओ। एक दूसरे के दुश्मन होने से मुराद एक तो ये है कि शैतान और इंसान तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और एक ये इस बात की तरफ इशारा है कि ए आदम और हव्वा, तुम्हारी जो औलाद होगी इंसान, तुम एक दूसरे के साथ दुश्मनी इख्तियार करोगे। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे काबिल और हाबिल, उनका वाक़या पीछे गुजर चुका सबक में, उनके साथ एक दूसरे के साथ दुश्मनी हुई तो काबिल ने हाबिल भाई को कत्ल कर दिया। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन इला हीन और नफ़ा उठाना है, इला हीन एक वक़्त तक, एक मुद्दत तक ज़मीन में तुम्हारा ठिकाना है, और एक मुद्दत तक ज़मीन में रह कर वहाँ से नफ़ा उठाना तुम्हारे लिए लिख दिया गया है। फिर वहाँ से वापस आओगे तो फिर तुम्हें अगर अच्छे आमाल करके आएंगे इंसान तो फिर जन्नत ठिकाना होगा। क़ाल फ़ीहा फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़ीहा इसी ज़मीन में, तहयौना तुम ज़िंदा रहोगे, व फ़ीहा तमूतूना और इसी ज़मीन में तुम मरोगे,
वमिन्हा तुखरजून, और इसी ज़मीन से तुम निकाले जाओगे। इंसान इसकी पैदाइश का ताल्लुक़ इसी ज़मीन से है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया गया जिस मट्टी से, वो भी अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिए से इसी ज़मीन से मंगवाई थी। ये मट्टी थी जिसके साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जस्द खाकी तैयार फरमाया गया। और फिर उसके बाद उनके आगे आने वाली जितनी भी नस्ल है, नस्ल इंसानी, ये सब की सब इसी मट्टी से पैदा हुई। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया फ़ीहा तहयौना, तुम इस ज़मीन में ज़िंदा रहोगे, व फ़ीहा तमूतूना, और इसी में तुम मरोगे, यानी मरने के बाद इसी के अंदर दफन कर दिए जाओगे। व मिन्हा तुखरजून, और इसी मट्टी से तुम निकाले जाओगे। इसलिए जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो दफन करने के बाद जब उसके ऊपर मट्टी डाली जाती है तो कुरान पाक ने वहाँ पर भी एक दुआ सिखलाई है। फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये दुआ पढ़ते हुए 3 चुल्लू मट्टी के हर आदमी के लिए डालना ये मुस्तहब अमल है। डालेंगे तो सवाब होगा, कोई नहीं डालता तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा। एक आदमी का इंतकाल हो गया, वो ख्वाब के अंदर मिला अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। उन्होंने कहा रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में हाजिर हुआ, जब नामे आमाल सामने रखे गए तो मेरे गुनाह ज़्यादा थे, नेकियां कम पड़ गईं। बहुत परेशान हुआ, सर झुका लिया, सोचने लगा कि अब फैसला जहन्नम का होने वाला है। अचानक फ़ज़ा से एक थैली छोटी सी उड़ती हुई आई और वो नेकियों वाले पलड़े में गिरी, और जिससे मेरे नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया और मेरे बारे में फ़ैसला कर दिया गया कि जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी, मुबारक हो। मैंने नज़र उठाई और उस थैली को उठाया कि ये क्या खुशकिस्मत चीज़ है जो मेरे लिए निजात का ज़रिया बन गई। जब उसको खोला गया तो उसके अंदर थोड़ी सी मट्टी थी। पूछा अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ये क्या मामला है। अल्लाह की तरफ से बताया जाता है, ए बंदे, फ़लाँ मौके पर फ़लाँ जनाजे में शरीक हुआ, फिर कब्रिस्तान गया, तदफीन में शरीक हुआ। उस बंदे की कब्र पर जब मट्टी डाली जा रही थी तूने मुझे राज़ी करने के लिए 3 चुल्लू मट्टी के वहाँ डाले थे, हमने वो संभाल के रख लिए, आज तेरी निजात का ज़रिया बन गया। तो इंसान के छोटे से छोटा अमल उसकी निजात का ज़रिया बन सकता है। इसलिए जो छोटे अमाल हैं इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको तलाश कर कर के इनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात छोटे अमल के अंदर बड़ी बड़ी पावर हो जाती है और वो छोटे से छोटा अमल भी बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। बड़े अमाल तो हर हाल में करने चाहिए। और एक बात आज के सबक से हमें ये मालूम हुई कि शैतान इतना पक्का दुश्मन है कि उसने दुश्मनी निभाई हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, वो हमें कैसे माफ़ करेगा, औलाद को कैसे माफ़ करेगा। दूसरी बात ये पता चली कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, अल्लाह ताला ने उनको तौबा के कलिमात सिखा दिए, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। तो अल्लाह ने हमें भी बता दिया कि जिस तरह तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पर शैतान ने हमला किया, उनसे गलती हो गई, फिर उनको हमने तौबा सिखाई, उन्होंने तौबा की, हमने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। ए क़यामत तक आने वाले इंसानों, तुम भी सुन लो, अगर तुम्हारे ऊपर कभी शैतान हमला कर जाता है और तुमसे गलती हो जाती है, तुम भी अपने बाप की तरह तौबा कर लेना और मेरे सामने गिड़गिड़ा लेना, मेरे सामने आंसुओं को बहा लेना। जब तुम मेरे सामने तौबा करोगे, मैं रब वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूँगा और तुम्हारी तौबा को कबूल करके तुम्हें भी ऐसे ही माफ़ कर दूँगा जैसे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ किया था। फरमाया मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु, तौबा करने वाला बंदा ऐसे है जैसे उसने गुनाह कभी किया ही नहीं। अल्लाह ताला को तौबा करने वाला बंदा कितना महबूब है, इसकी एक मिसाल ये दी गई कि वीराने के अंदर
जंगल में तन्हाई में एक बंदा सफ़र कर रहा है और सफ़र करते करते उसके पास जो साजो सामान है वो कम रह गया। एक सवारी है, कुछ खाने पीने का सामान है। अचानक उसकी सवारी और साजो सामान सारा गुम हो गया और वो अपनी मौत के इंतज़ार में एक दरख्त के नीचे लेट गया तलाश करते करते। जब उसकी अचानक आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी सवारी सामने खड़ी है। इस बंदे को कितनी खुशी होगी। फरमाया इससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह को खुशी होती है जब एक नाराज़ और रूठा हुआ बंदा अल्लाह ताला के साथ सुलह करके तौबा कर लेता है। दूसरी मिसाल ये दी गई, एक मियाँ बीवी हैं, औलाद नहीं हुई, 2 साल 4 साल 20 साल 25 साल गुजर गए। डॉक्टरों की तरफ से, हकीमों की तरफ से, हर तरफ से नाउमीदी हो गई। 20-25 साल के बाद अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई और बेटा अता फरमा दिया। बताइए इस माँ को कितनी खुशी होगी। फरमाया जितनी इस माँ को खुशी हो रही है आज, अल्लाह को कहीं इससे भी कई गुना ज़्यादा खुशी होती है जब रूठा हुआ बंदा रब के दरबार में आकर कहता है अल्लाह मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह इतने रहीम हैं, सिर्फ हमारे आने में देर है, अल्लाह के माफ़ करने में कोई देर नहीं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की एक एक आयत मुबारका को सही तरह से समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।